हेलो दोस्तों, एसआर क्लासेस में ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। आप कर रहे हैं संविधान संविधान जिस ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ चार पार्ट्स कर चुके हैं। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ चार पार्ट ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜ ਤੇ ਸੰਘ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੀਪੀਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੱਗੇ ਚੌਥਾ ਏ ਪਾर्ट ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। मौलिक करतब ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੂਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਗ 4A ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੂਲ ਕਰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਸ਼ਟਭੂਮੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਤੱਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ कमेटी बनाई गई 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗੀ। ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਫਰਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਰਤੱਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਡੇਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਰਤੱਵ ਨਿਰਮਿਤ ਲਿਸਟਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੀ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ 8 ਕਰਤਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। 8 ਕਰਤਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਯੋਗ ਵੀ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਤੱਵ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ 42ਵੀਂ ਸ਼ੋਧ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 42ਵੀਂ ਸ਼ੋਧ 1976 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ? 8 ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ 10 ਕਰਤੱਵ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 10 ਕਰਤੱਵ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ 4A ਨਵਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ? ਆਰਟੀਕਲ 52A ਆਰਟੀਕਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 10 ਕਰਤੱਵ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ। ਭਾਗ ਕਿਹੜੇ ਚ ਹੈ? ਚੌਥੇ A ਚ। ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ? 52A ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਟ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਆਪਣੇ? ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ? 10 ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਐਟ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਰਤਮਾਨ ਚ 11, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ 11 ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 11ਵਾਂ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 86ਵੀਂ ਸ਼ੋਧ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਤੱਵ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 21A ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ DPSP ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ 45, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ 11ਵਾਂ ਕਰਤੱਵ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। 4-5 ਫੈਕਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਆਂਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਫੈਕਟ ਹੈ? ਨਿਆਂਯੋਗ
नहीं है। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति ने जी कमेटी सी उन्होंने तो सिफारिश की सी भी न्याययोग होने चाहिए, पर सरकार ने इन्होंने न्याययोग नहीं बनाया, गैर न्याययोग नॉन जुडिशियल है। सैकंड की पॉइंट इस सैकंड पॉइंट है कि ये ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, रूसी संविधान तो लिया, रूसी संविधान तो लिया। रूसी संविधान तो जो भी ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ किसी भी ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ रूसी संविधान ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ रूसी संविधान तो ਆਪਾਂ रिव्यू लिया। ठीक है, इसलिए आप मानते हैं कि रूसी संविधान तो आप मौलिक कर्तव्यों का प्रोविजन लिया। ठीक है, व्यवस्था नहीं। तीसरा की है इस दे विच एक पॉइंट जो क्वेश्चन आता है कि जिन समाजवादी जिन्ने भी देश है, समाजवादी देश होंगे है ना, समाजवादी लोकतंत्री या तानाशाही तीन तरह चार तरह के होंगे हैं, जो समाजवादी देश है उन्होंने तो सारे को मौलिक कर्तव्य उन्होंने लिस्टड है। पर जिहड़े अपने लोकतंत्री देश है उस विच भारत तो अलावा एक होर देश है जापान। जापान है जिसके कोल की मौलिक कर्तव्यों का प्रोविजन है, व्यवस्था है। भारत तो अलावा लोकतंत्री देशों की गल कर रहे हैं, लोकतंत्री देशों में जापान तो अलावा भारत को, भारत तो अलावा जापान को। ठीक है, ये दोनों देशों को मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, चौथा की है जो अपना मौलिक कर्तव्य है, पहला मौलिक कर्तव्य उस संविधान की गल की गई है, राष्ट्रीय गान की गल की गई है, राष्ट्रीय संस्थावां की गल की गई है, पर उस राष्ट्रीय गीत की गल नहीं की गई। इस स्टेटमेंट के क्वेश्चन आया हुआ है कि राष्ट्रीय गीत की गल नहीं की गई, राष्ट्रीय गीत का संविधान के जो कर्तव्य है पहले कर्तव्य गल नहीं की गई राष्ट्रीय गीत की। ठीक है जी, ये याद रखने जो गल है। दूसरा आप एक पॉइंट पढ़ चुके हैं पहले कि उन्होंने कहा कि न्याययोग होनी चाहिए, पर न्याययोग नहीं सी। ठीक है जी, कि कमेटी ने कहा सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, जिन्होंने बारे को पढ़ चुके हैं। इस तो बाद एक होर कमेटी आई सी वर्मा कमेटी, जिसकी कि ये नहीं पूछ लिया जाता कि कदों बनी सी वर्मा कमेटी 1999। ठीक है, ये आई एक आदि आई सी मौलिक कर्तव्यों बारे ही पड़चोल करना भी की ऐड होना चाहिए या कुछ कटना है या कुछ पाना है, उस दिन ही बनाई गई सी मौलिक कर्तव्य। ठीक है, इन्होंने की सिफारिश की सी, पहला तो इन्होंने दोनों अर्थ समझो, इन्होंने कहा सी कानून मुताबिक सजा होनी चाहिए, कानून मुताबिक सजा होनी चाहिए भी कुछ अजिहे जिहड़े अपने मौलिक कर्तव्य है जिहड़े कि देश के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, उन्होंने लिए कानून बनावे संसद ते उस दे तहत सजा होनी चाहिए। पर स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा सी भी जेकर कोई भी नागरिक अपने मौलिक कर्तव्य फर्जां की नहीं निभाता उन्होंने तो उसके लिए सजा होनी चाहिए। इससे डिफरेंस कि जे उन्होंने स्वर्ण सिंह के मुताबिक चलिए आप कमेटी के अनुसार, तो जेकर कोई मतलब कि अपने माँ बाप जो कोई भी एजुकेशन नहीं दे रहा 6 तो 14 साल के बच्चे तो उस दिन भी सजा बनती है। पर इन्होंने कहा सी जिहड़े जरूरी है कानून बनाओ, जिवें कि अपने जे कोई राष्ट्रीय झंडे का बेअदबी करता है तो उसके लिए 1971 का तहत एक एक्ट बनया हुआ है जिसके तहत सजा दी जाती है। ठीक है, उस तहत क्या सी भी कानून मुताबिक सजा होनी चाहिए, मतलब कि जिहड़े जरूरी कर्तव्य है जेकर कोई उन्होंने पालना नहीं करता या उसके विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उन्होंने सजा होनी चाहिए। ठीक है जी, ईयर याद रखना तो इन्होंने कानून मुताबिक सजा की गल की सी, ये मौलिक कर्तव्यों के लिए सी, ये 3 पॉइंट इन्होंने याद रखने। ठीक है जी, वर्मा कमेटी के लिए। इस तो बाद पढ़ते हैं आप मौलिक कर्तव्य अपने ट्रिक के राही पढ़ांगे आप सिंपल जी ट्रिक है, जिस दिन तुहानूं इत्थे क्लास विच याद हो जाणगे, तुहानूं कोई रट्टा लाउण दी लोड़ नहीं कुछ नहीं। पहला तो 11 कर्तव्य अपने A B C D E F G H I J K। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है जी, इस तरह मतलब इस पास आप दो पगड़े मार लेने, इधर आप मौलिक कर्तव्य लिख लेंगे। ठीक है, ए फॉर एंथम। ठीक है, एंथम तो तुझे याद रखना है पहला मौलिक कर्तव्य, जिस विच लिखा गया कि भारतीय नागरिक संविधान संविधान राष्ट्रीय गान
ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਮੌਲਿਕ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ ਦੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏ ਫॉर ਐਂਥਮ, ਐਂਥਮ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ। ਬੀ ਫॉर ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਕਰਤੱਵ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, मतलब कि स्वतंत्रता अंदोलन के दौरान जिन्ने भी अपने शहीद होए, देश भगत होए, उन्होंने दिल में समाए रखना ते उन्हों का सन्मान करना। स्वतंत्रता अंदोलन दौरान अपने जिहड़े अंदोलनकारी सी, शहीद सी या जिहड़े अपने अंदोलनकारी सी, उन्होंने दिल में समाए रखना। शहीद भगत सिंह तो याद रखना, बी फॉर भगत सिंह, मतलब स्वतंत्रता अंदोलन दौरान जो शहीद होए, देश भगत सी या उन्हों का सन्मान करना तो उन्होंने दिल में समाए रखना। ये अपना मौलिक कर्तव्य है सैकंड जी। ठीक है जी। दो हो गए। तीसरा है अपना, तीसरा हो जो सी फॉर कन्फर्म सॉवरेंटी। सी फॉर कन्फर्म सॉवरेंटी, सॉवरेंटी सॉरी सॉवरेंटी, सॉवरेंटी मतलब एकता। एकता तो याद रख लेंगे तुम, सॉवरेंटी मतलब एकता होगी है ना, एकता। इथों पर तीसरा करांगे कि भारतीय नागरिक देश की एकता ते अखंडता ते, देश की एकता अखंडता ते प्रभुसत्ता बनाई रखनी। ठीक है, बनाई रखनी या बनाई रखने की कोशिश करनी। ठीक है। सी फॉर कन्फर्म सॉवरेंटी। ठीक है जी। सॉवरेंटी मतलब एकता, इथों याद कर सकते हैं आप देश की एकता अखंडता ते प्रभुसत्ता बनाए रखेंगे। ठीक है जी। डी फॉर डिफेंस। ठीक है, इथों आप करेंगे चौथा अपना मौलिक कर्तव्य याद। चौथा हो गया डिफेंस। डिफेंस मतलब रक्षा, मतलब कि देश की रक्षा करेगा तो लोड़ पैन ते राष्ट्र की सेवा करेगी। देश की रक्षा करना, लोड़ पैन ते देश की सेवा करना। डी फॉर डिफेंस, डिफेंस तो रक्षा सिंपली है। डी फॉर डिफेंस देश की रक्षा करनी। ठीक है। इनू जो तुसी रेट कर रहे हो आपको फंडामेंटल राइट्स कराया सीगा ते आर्टिकल 23(3) जिस दे 22(3) जिस दे तहत की मतलब कि आपां नूं सेना में शामिल किया जा सकता है बिना तनख्वाह तो, जेकर आपां ने राष्ट्र नूं लोक सैनिकां दी लोड़ पैंदी है। ठीक है, वो इस दे तहत थी कि देश की रक्षा करांगे ते राष्ट्र की सेवा करांगे। डी फॉर डिफेंस तो याद रख लियो चौथा। ठीक है, एवें सीक्वेंस विच याद रख लियो। ठीक है। पंजवां आ गया ई। ई फॉर एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट वूमेन। ई फॉर एम्पावरमेंट वूमेन। वूमेन तो तुम समझोगे। पंजवां अपना हो गया मतलब कि औरतों की गरिमा नूं बनाई रखना, औरतों की गरिमा नूं बनाई रखना। गरिमा मतलब कि एक उन्होंने पद्धर नूं बनाई रखना, ना एवें नहीं भी आप जमा नीचा दिखाइए या कुछ भी इस तरह के, मतलब गरिमा नूं बनाई रखना ते भाईचारा बनाई रखना, भाईचारा बनाना। ठीक है जी। हम ई फॉर एम्पावरमेंट वूमेन, वूमेन तो औरतों की गरिमा नूं बनाई रखना, ये याद करनी ट्रिक है सिर्फ। ठीक है जी। हो गया ई। एफ फॉर फ्यूजियो कल्चर, फ्यूजियो कल्चर इस तरह करांगे आपां छेवां, छेवां मौलिक अधिकार। फ्यूजियो कल्चर तो समझ रहे होंगे, सभ्याचार ते सामाजिक संस्कृति, देश की सामाजिक अमीर संस्कृति। ठीक है, संस्कृति की रक्षा करना, रक्षा करना प्लस उसनू बनाए रखना। फ्यूजियो थोड़ा याद कर लियो, औखा वर्ड है। कल्चर तो सिंपली रख लोगे, सभ्याचार ते सामाजिक संस्कृति नू बनाए रखना अपना की है मौलिक कर्तव्य, छेवां मौलिक कर्तव्य। ठीक है जी। अगे आप करते हैं सतवां, सतवां जी फॉर ग्रीन। ग्रीन तो सिंपली समझोगे तुसीं, ग्रीन मतलब वातावरण। सतवां हो गया ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पंजवां छठवां सतवां। ग्रीन फॉर सतवां फॉर ग्रीन फॉर क्या सतवां अपने वातावरण, वातावरण जंगली जीवन की रक्षा करना तो उसमें नुकसान नहीं पहुंचाना। ठीक है। सतवां अपना मौलिक अधिकार जी फॉर ग्रीन की कहता है
कि ये भी रखना पहला दूसरा तीसरा चौथा पंजवां दसवां ते 11वां। ठीक है जी फॉर ग्रीन, ग्रीन मतलब ग्रीनरी रख लो या ग्रीन रख लो, जिस कि अपन वातावरण एक समझ की गल है, वातावरण ते जंगली जीवन की रक्षा करना अपना 7वां मौलिक कर्तव्य है। ठीक है जी ये हो गया। 8वां की है एच, एच फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मतलब मानवतावाद। ठीक है जी एक ही कहता है कि मानवतावाद ते वैज्ञानिक दृष्टिकोण। 8वां हो गया ना अपना मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ते विच सुधार करना, सुधार करना ते बनाई रखना। सिर्फ वही सारी चीज़ां बनाई रखना ते रखा करना। इस विच सुधार करना, मानवतावाद ते वैज्ञानिक दृष्टि विच सुधार करना ते उसनूं बनाई रखना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब कि जिहड़ी अपनी पुरानी रूढ़ीवादी सोचां उन्हां तो कर्मकांड जो भी करते से आप पहला पूर्व मनुख करता सी उन्हां तो थोड़ा जिहा आज़ादी लैनी ते वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाउणा। ठीक है जी 8वां हो गया ह्यूमैनिटी तो मानवतावाद, याद रख लियो तुसीं। ठीक है एच फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी तो मानवतावाद, इन्ना भी याद रहेगा तुहानूं एग्जाम में टिक करना सौखा हो जाता है। ठीक है आई फॉर इनकम, आई फॉर इनकम, इनकम मतलब संपत्ति, नौवां नौवां ही ना अपना इनकम मतलब संपत्ति, देश की सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना ते उसनूं कोई से संपत्ति की रक्षा करना ते उसनूं किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाना। जिवें कि आपां दंगा करदे सरकारी चीज़ां नूं तोड़ दिंदे आ भंन दिंदे आ, उस चीज़ उस तरह की चीज़ां अपने नाल मौलिक कर्तव्य दे विच आउंदियां भी आपां उन्हां दा नुकसान नहीं करना। सार्वजनिक जी संपत्ति है उसकी रक्षा करना भी अपना फर्ज है ते उसनूं नुकसान ना पहुंचाना भी अपना फर्ज बनता है, मौलिक कर्तव्य है जी। ठीक है ये हो गया अपन 10। आई तो याद रखो इनकम, इनकम मतलब देश की इनकम, देश की इनकम की है जिहड़ी सार्वजनिक संपत्ति है। ठीक है जी इथों एक याद रख दिओ। जे फॉर, जे फॉर हो गया अपना ज्वाइंट, 10वां हो गया अपना जे फॉर ज्वाइंट, ज्वाइंट मतलब की होंदा है जोड़ना। ठीक है सारे ਇਹੋ ਜਿਹੇ प्रयास करना जिस नाल की अपने देश की एक ज्वाइंट समूहिक प्रयासां च वाधा करना। ठीक है जिस नाल की व्यक्तिगत, व्यक्तिगत प्लस समूहिक प्रयास, प्रयास मतलब कोशिशां, कोशिशां करना जिस नाल की अपने आपां उपर वाले देश नूं अगे वाले जा सके, देश नूं अगे ले जाने। ठीक है अगे ले जाने मतलब कि ज्वाइंट रवांगे आपां, जे फॉर ज्वाइंट, ज्वाइंट मतलब व्यक्तिगत तौर पर भी कार्य करांगे ते समूहिक तौर पर लोगों को जोड़न की कोशिश भी करांगे जिस नाल कि आपां देश नूं एक संसारिक पद्धर ते अगे ले जा सकीए। ठीक है जे फॉर ज्वाइंट, ज्वाइंट तो मतलब समूहिक, इन्ना याद रख लियो तां सौखा हो जाता है। के फॉर किड्स ये आपां पहला भी कर लिया। 11वां जिहड़ा कि अपनी 86वीं शोध राहीं जुड़िया गया 2002 दे विच, 11 नंबर मतलब कि मापियां दा कर्तव्य होगा कि 6 ਤੋਂ 14 साल के बच्चों को फ्री ते कंपलसरी एजुकेशन देना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। ठीक है जी कदों जोड़ा गया है 86वीं शोध राही 2002 दे विच। ठीक है जिसका एक्ट आया सी एजुकेशन एक्ट 2009 दे विच जिहड़ा कि 2010 अप्रैल 2010 च लागू होया सी। इस एक्ट नूं आपां अगे अलग तो इंडिविजुअल तौर पर करांगे। ठीक है जी ये हो गया अपने याद। पहला ए फॉर एंथम, बी फॉर भगत सिंह, सी फॉर कन्फर्म सैरेमनी। एंथम मतलब राष्ट्र भारतीय संविधान ते राष्ट्रीय गान की रक्षा ते सम्मान। भगत सिंह जिन्हों ने आज़ादी दवाई, स्वतंत्रता अंदोलनकारी देशभक्त उन्होंने सम्मान करना तो उन्होंने दिल समोए रखना। कन्फर्म सैरेमनी एकता, देश की एकता अखंडता बनाई रखना। डिफेंस मतलब जो लोड़ पे देश की रक्षा करांगे। एनवायरमेंट वूमेंट, वूमेंट की गरिमा बनाए रखेंगे तो भाईचारा बनावांगे। फ्यूजी कल्चर देश की जो संस्कृति है तो जो सभ्याचार उसनूं बनाई रखांगे। ग्रीनरी जी फॉर ग्रीनरी, ग्रीनरी मतलब वातावरण जंगली जीवन ते जंगली जीवन की रक्षा करांगे। ह्यूमैनिटी मानवतावाद, मानवतावाद ते वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रोत्साहित करांगे जिस नाल कि देश नूं अगे जा सके। इनकम देश की संपत्ति नूं कोई नुकसान नहीं पहुंचावांगे ते उसकी रक्षा करांगे। जे फॉर ज्वाइंट
ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇ ਫॉर ਕਿਡਸ ਮਤਲਬ ਕਿ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਰਤੱਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਲਾਸ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ 'ਚ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।